Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to write some more questions of the lesson The Merchant of Venice. Yesterday we have completed question 6. Now today we are going to start to write question number 7. Now question number 7 is who is disguised as the learned counselor Dr. Balthasar? Why has he come to the court of Venice? कौन आया था बेस बदल कर डॉक्टर बाल्थासार की शेप में और वो क्यों कोर्ट ऑफ विंस पहुंच गया था? So the answer of question number 7 is Portia is disguised as the learned counselor Dr. Balthasar. In actuality, Portia had sent a message to her cousin Valerio, who was a lawyer, telling him of Antonio's flight and seeking his advice. Valerio quickly sent his advice besides the lawyer's clothes which Portia had asked for. He, Balthasar, and Nircia, the clerk in the men's apartment, have come to the court of Venice to plead for Antonio, as he has been out in the precarious situation by Shylock. तो कौन आया था कोर्ट ऑफ विंस में बेस बदल कर? मतलब वो तो आई थी पोर्शिया, who was beloved of Bassanio, but here she is disguised as the learned counselor. किसके बेस में बदल? डॉक्टर बाल्थासार. एक्चुअली जो पोर्शिया थी उसने अपने कज़िन को ये मैसेज भेजी थी कि जो एक लायर था कि उसने इसको एंटोनियो का पूरा किस्सा सुनाया था और उससे कुछ एडवाइस ली थी. तो उसके बाद उसने इसको लॉयर्स के कपड़े भेजे थे जो मतलब जो पोर्शिया ने मंगवाई थी. तो ये जो बाल्थासार थी, डॉक्टर बाल्थासार, दैट मीन्स पोर्शिया, और उसकी एक क्लर्क, मतलब वो कोर्ट ऑफ विंस में एंटोनियो का केस प्लीड करने आए थे. तो जो कि मतलब शैलाक ने इसको बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पेश किया था एग्रीमेंट के तौर पर. So question number 8 is, how did the counselor start his argument and how was able to get the judgment in Antonio's favor? तो किस तरह काउंसलर ने अपनी आर्गुमेंट दी एंड हाउ वाज एबल टू गेट द जजमेंट इन, और किस तरह फैसला सुनाया गया एंटोनियोस के फेवर में. द काउंसलर इन ए मोस्ट इंटेलिजेंट manner started by arguing in favor of Shylock and retreated his claim to the pound of flesh in a movingly touching fashion. At the same time, she appealed to the Colossi to show mercy to Antonio. However, the stone-hearted usurer was moved in the least and did not change his merciless stance. The situation turned dramatic when Portia informs Shylock that the bond does give him the pound of flesh but does not give him a drop of blood, which Shylock puts in a shocking dilemma and gives him a surprising blow. तो जो काउंसलर थी, दैट मीन्स पोर्शिया, बहुत ही काबिल ज़हीन थी. तो उसने किस तरह शैलाक को मतलब किस दावे में उसको, मतलब जो इससे दावा किया था, जिसने एग्रीमेंट में ये बोला था कि मुझे पाउंड ऑफ फ्लेश चाहिए. तो
पहले शैलॉक को लगा कि ये जो काउंसलर, ये जो लॉयर है, ये मेरी मतलब फेवर में बात कर रही है, लेकिन उसी टाइम उसने अपना मतलब एक काबिली तरीन तरीके से इसको मतलब उसी के केस में फंसाकर उसको बताया कि ये जो यहूदी था, किस टू शो मर्सी टू एंटोनियो, किस तरह उसने मतलब रहम किया उस पर. हाउएवर द स्टोन हार्टेड यूजर वॉज मूव्ड इन द लीस्ट एंड डिड नॉट चेंज हिज मर्सलेस स्टैंस. तो उसने इसको रहम की भीख मांगी कि आपको इस पर रहम करना चाहिए. लेकिन इस तरह पोर्शिया ने किस तरह सिचुएशन टर्न की इन अ ड्रामेटिक मैनर. तो पोर्शिया ने इसको इन्फॉर्म किया, हाँ आपने इसको पाउंड ऑफ फ्लैश तो मांगा, लेकिन डज नॉट गिव हिम ए ड्रॉप ऑफ ब्लड विच पुट शेलॉक ने, लेकिन आपको पाउंड ऑफ, आप काट सकते हो उसका पाउंड ऑफ फ्लैश, लेकिन आप खून का एक ड्रॉप, ब्लड का एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए. तो जब शेलॉक ने ये शॉकिंग न्यूज़ सुनी तो वह बहुत ही कन्फ्यूजन में पड़ गया, डिलेमा में पड़ गया, और उसको बहुत ही एक हैरानगी का एक शॉक जैसा लग गया. Sherlock, seeing the condition turn topsy-turvy for him, demands 3 times of the principal, which is outrightly rejected on grounds that either the pound of flesh or nothing has to be taken. Insult is added to his injuries when Portia holds the defeated Jew and accuses him legally of plotting against a Christian's life besides the citizen of Venice. Sherlock gets into a big jam and begs for mercy as Antonio gets him under his sword. तो जब शैला को लगा कि सिचुएशन मतलब मुख्तलिफ हो रही है, यहाँ तो कंडीशन कुछ और ही हैं, तो उसने डिमांड की कि जो के प्रिंसिपल के असूल के हिसाब से उसने जो पैसे 3 टाइम्स मोर मांगे थे, तो वो अब वही बता रहा था कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मतलब 2-3 गुना ज़्यादा. लेकिन पोर्शिया ने उसको यहाँ पे भी हरा दिया. उसने कहा, लेकिन आपने जो मतलब प्लान बनाया था किसके खिलाफ, इस एंटोनियो के खिलाफ, उसकी लाइफ को मैं ख़त्म करूँगा, कि जो कि एक शहरी है, जो कि एक सिटीज़न है वेनाइस का, तो इसका आपका बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा. लेकिन अब तो आपको मतलब अब जो शैलाक था वो अब एंटोनियो से रहम की भीख मांग रहा था कि मुझे, लेकिन वो उसकी तलवार के नीचे आ गया था. वो अब न भाग सकता था ना कुछ कह सकता था इस सिचुएशन में. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, हाउ डज पोर्शिया गेट बैक हर रिंग. किस तरह उसने अपनी रिंग वापस ली. After Portia, in the disguise of a lawyer, wins the case for Antonio, she decided to receive a gift from Bassanio after insistence by the latter. She asks for the ring on Bassanio's finger, which puts Bassanio in a great fix, as he has promised his beloved never to part with the ring. Antonio gauges the situation well and tells Bassanio to give the precious token of his love to the lawyer. Poor Bassanio cannot displease Antonio, who had put his life at the greatest risk for his sake, and unwillingly gives away the ring to Portia in the disguise of a lawyer. तो किस तरह पोर्शिया ने वापस रिंग दी. जो पोर्शिया थी, जो बेस बदल कर आई थी लायर के रूप में, तो जिसने एंटोनियो का केस जीत लिया था, तो उसने फैसला किया था कि मुझे कोई गिफ्ट चाहिए. किसकी तरफ से? बेसेनियो की तरफ से. तो वो उसको ये रिंग मार रही थी जो इसके बेसेनियो ने अपनी फिंगर में पहनी हुई थी, लेकिन बेसेनियो नहीं मतलब इस पर मान रहा था, क्योंकि उसने अपनी माशोका से, अपनी बिलावट से ये प्रॉमिस किया था कि मैं इस रिंग को कभी नहीं उतारूँगा. लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे ऐसी हुई कि एंटोनियो ने उसको कहा कि आप ये जो आपके पास टोकन ऑफ लव है, ये आप इस लॉयर को दे सकते हो, क्योंकि उसने हमारी जान बचा दी, उसने हमारा केस जितवाया. तो जो पुअर बेसेनियो, वो कुछ जब एंटोनियो ने इसको बोला, तो वो उस अपने दोस्त को ना नहीं बोल सका, क्योंकि उसने उसकी लाइफ जो संवार दी थी, तो वो कुछ ना बोल सका. अब उसने बहुत ही रिस्क उठाया और अनविलिंगली, दिल ना चाहते हुए भी उसने इसको ये रिंग दे दी कि